In fact, let's tell you, Union Minister and BJP President JP Nadda has written to Congress Chief Mallikarjun Kharge after his recent letter to the Prime Minister demanding disciplinary action on BJP leaders for their rude remarks against Rahul Gandhi. Now, launching a scathing attack, Nadda shows the mirror to the Congress party, accused the Congress of becoming a copy and paste party under the pressure of its famous prince, Rahul Gandhi. In fact, the BJP president also claimed that it's hypocritical how Kharge continues to ignore the misdeeds of his own party leaders. He reminded the Congress president how in the past Rahul Gandhi made unparliamentary remarks on Narendra Modi, including his Chaukidar Chor Hai comments, and claims that the public would beat up the Prime Minister with sticks. Not just this, Nadda also brought up the instance where veteran Congress leader Sonia Gandhi called Prime Minister Modi, that is, Maut ka Saudagar, and cited names of several senior leaders where Congress refused to take any action against them when they made inappropriate comments about the Prime Minister. देखिए, आदरणीय नड्डा जी ने जो कहा है वो देश की जनता कह रही है कि राहुल गांधी एक फेल्ड प्रोडक्ट है जो झूठ की राजनीति करते हैं। ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज़्यादा बार गालियों का प्रयोग किया। मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन किया? नहीं किया, उसको जस्टिफाई करने लगे। After the letter which was being written by the Congress President Mallikarjun Kharge, a response has come from the BJP President JP Nadda, and he has said that this is nothing but just an attempt on the part of the Congress President to relaunch a failed product, as he is targeting the Congress leader Rahul Gandhi. Not just this, but in fact he has also mentioned the various statements which are being given by the Congress leaders, in fact the CPP chairperson Sonia Gandhi, against Prime Minister Narendra Modi. That's what he has written in his letter. It's very unfortunate cabinet minister and the BJP president speaking this language, and they are not there. Now it's very clear that the Godse language, Godse Vad, which has been there, the hate action and hate language has been authenticated by the BJP president himself. He is accepting that what Bittu spoke is right, what the Shiv Sena MLA has spoken is right, what the BJP minister has spoken in Uttar Pradesh is right. For it's a clear cut that the Godse Vad of BJP and RSS is continuing. They should dismiss Bittu from the position because he has called the leader of opposition as terrorist. Ravikant, my colleague, is joining me for more. Ravikant, good afternoon. राजनीतिक तौर से इस रेस्पॉन्स को जो है किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जेपी नड्डा ने जो खत लिखा है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये उन्हीं के खत का जवाब है और इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। और एक व्यक्ति का बार बार आप उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासी मजबूरी हो सकती है कि वो बार बार राहुल गांधी किसी चीज को गलत करते हैं और उनके बचाव में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है। और बीजेपी ये बताने का प्रयास कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गांधी परिवार को किसी भी कीमत पर डिफेंड करेंगे। और पूर्व में जितने भी बयान दिए गए हैं उन बयानों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिक्र किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति के बारे में विवादित टिप्पणियां देते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर चुप रहते हैं। लेकिन इस तरीके की जो टिप्पणियां रही हैं, जो व्यवहार रहे हैं, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके से राहुल गांधी को बचाने का प्रयास करते हैं, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी को लेकर जो भी टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी को यहां पर यानी भारतीय जनता पार्टी के एंड पर किसी भी प्रकार से एंडोर्स नहीं किया गया है, जो कि रवनीत बिट्टू ने दिया था।
हालांकि पार्टी की तरफ से उनको ये भी कहा गया है कि इस तरीके की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो लगातार इस तरीके का बयान देते रहते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर, भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो इसका खंडन आता है, ना कोई उनको रोकने का प्रयास करता है, जो ये दिखाता है कि बार बार इस तरीके के जो अटेम्प्ट किए जाते हैं उनकी मौन सहमति जो है वो कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व की होती है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही राहुल गांधी के बचाव में आकर खड़ा हो जाए, जिसे बीजेपी बताना चाहती है कि पूरी की पार्टी की जो सोच है वो एक तरीके है। राहुल गांधी को चाहे आप जितना डिफेंड करें, जितनी बार उनको लॉन्च करने का प्रयास करें, वो एक फेल्ड प्रोडक्ट हैं और इसीलिए ये लेटर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है। Jay Ravikant, thank you very much for getting us more perspective as to what really, happened out there as far as that letter is concerned, a key takeaway, and more importantly, where the rebuttal did come from. Having said that, we leave it at that for the moment. We continue to track more political developments. In fact, let's tell you what